महिमा गौरव आदर स्तुति करते हैं परमेश्वर। Father, we thank you from the depths of our heart. We give you glory, praise, and honor. हम घट जाएं तो ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना Lord, है। this is a prayer that we will decrease and you will increase in our life. प्रभु, ये वक्त आपने दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता Lord, I हूँ। thank you for giving us this time. I thank your name for सारा that. गौरव आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। I give you all the glory, praise, and honor. पिता, आपको महिमा मिले, आपको स्तुति मिले परमेश्वर। Father, we praise you. Father, we glorify प्रभु, you. आज के वचन से तो हमसे बातें कर पिता। Father, speak with us through your word. तेरे नाम को जलाल मिले प्रभु। Let your name be तेरा glorified. दास तेरे सामने अपने मुख को पसारता है। And Lord, your servant opens his mouth before you. इस जीभ इस मुख पर तेरे अभिषेक को Send भेज। forth your anointing over this mouth and this tongue. हाँ, सौरभ को भी अभिषेक कर प्रभु, And anoint Saurabh जो also, मेरा आत्मिक बेटा who is my है। spiritual son. सारी महिमा गौरव आदर स्तुति पिता हम आपको We देते give you हैं, all the glory, praise, and honor. त्राता यीशु के नाम In the में, name of Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. बोलो यीशु मसीह की Jai. हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग चलते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। So people of God, it is now time to hear the word of God and let us thank the Lord. अगर आपके पास बाइबल है तो यहोशुआ उसका 9वां अध्याय 14 और 15 हम इस वचन को पढ़ेंगे। If you have brought your Bible, let us turn a Bible to Joshua chapter 9 verses 14 and 15. यस, पढ़िए। हाँ। बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। हाँ। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। ओके। इस 9वें अध्याय को जब हम देखते हैं, So we read here in chapter 9, खास करके 9वें अध्याय के अंदर एक सबसे बड़ा छल बाइबल बताती है। especially chapter 9 is a story of a great deception. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान किस प्रकार छल करके आपको मुझे गिराता है। And let me also tell you this morning how we should recognize that the devil uses deception for our fall. इन अंतिम समय में शैतान की युक्तियों को, उसकी चालाकियों को आप लोग जानिए। In this end times, let us realize what is the tricks and the tactics of the devil. आपके प्रार्थना के जीवन बहुत मजबूत होगा, आपकी आराधना बहुत मजबूत होगी, आप बाइबल पढ़ने में बहुत माहिर होंगे, आप परमेश्वर को सम्मानित करने वाले होंगे, या सब कुछ वगैरह वगैरह सब होगा, फिर भी शैतान बड़े चतुराई से आपको गिराने की कोशिश करता है। Probably, perhaps your prayer life would be strong. You are strong in the word. You are in praise and worship, and you are spirit filled, and you are honoring God in all the ways of your life. But still remember, if you are ignorant about the tricks of the devil, he will fool you and deceive you into your fall. इस सुबह में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, So this morning, let me tell you, चर्च, आप और मुझे प्रार्थना की जरूरत है। church, you and I need prayer. शैतान आपको छल करके ना गिराए। So let not the devil deceive you to fall prey or to in his trap. आप और मैं ये बेहतर जानते हैं कि मसीह ने सारे युद्धों को उस क्रूस के ऊपर आपके मेरे लिए जीत लिया है। You and I know very well that Christ has conquered every battle for us on that cross. उसकी सत्ता, उसका सामर्थ छीन लिया गया है। His power, his strength has been stripped off. इतने होने के बावजूद और फिर कलीसिया को उसने उपहार दिए हैं, अभिषेक दिया है, दान वरदान दिए हैं, उसने सामर्थ दिया है, पवित्र आत्मा दिया। ये होने के बावजूद भी आज कलीसिया के विश्वासी गिर जाते हैं, सेवक गिर जाते हैं। Now, after all these things, Jesus Christ has also equipped his church. He has given them his word. He has given them the Holy Spirit. He has given them the gifts of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit. Even though the church is well equipped with all these things, still we find that the church falls prey to the deception of क्योंकि the enemy. शैतान आपको जीने नहीं देता, कोशिश करता रहता कैसे वो आपके जीवन में प्रहार करे, कैसे आपके साथ छल कपट करे और कैसे आपको विश्वास से गिराए। Because the devil does not want you to stay strong in the presence of the Lord or in the word of God, and so he uses different strategies for you to be deceived so that you will fall into his trap. आज का संदेश निश्चित आप लोगों के जीवन में काम करेगा। And today's message will definitely work in your life. कितने लोग चाहते हैं कि शैतान के छल से हम बचना चाहते हैं? पास्टर जी, यस, वो क्या चाले चलता है उसके लिए हम उससे बचना चाहते How हैं। many of you want to avoid
avoid the deception of the enemy and all the traps which he has laid for you. हालेलुया। Hallelujah. इसका सबसे बड़ा तोड़ है और सबसे बड़ा एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि परमेश्वर के पास बैठिए, रोइए और बोलिए, एक तो वर्ड ऑफ नॉलेज दे या परखने वाली आत्मा दे। You know, the greatest weapon against the deception is that you sit and pray in the presence of the Lord and ask for the gift of word of knowledge or the discernment of the spirits. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. शत्रु आप पे दोष पे दोष, दोष पे दोष, दोष पे दोष, इतना दोष मर देता है कि आपका जीना गुहार हो जाता है और आप उसमें दब दब के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं आज का संदेश आपको सहायता करे। आपको मैं कहना चाहता हूँ, या आप परमेश्वर के राजकुमार हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा खरीदा है। आपको विजय की कुंजियाँ उसने आपके हाथों में रखी हैं। कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई पहाड़, कोई ताकत आपके सामने ठहर नहीं सकता है। So people of God, let me tell you that the devil will always try to burden you with accusation and guilt and condemnation. But remember one thing, that Christ has redeemed us from all these things. And so let us remember one thing, that God has equipped us for all the things which pertain to our life. फिर आपको क्या करना है? So what should we do then? तो आपको इस विजय के अंदर खड़े होना है। You need to stand in this victory. सर, कोई दबाव आपके ऊपर आए, वो दबाव में गिर जाए, मैं कहूँगा आप मसीह नहीं है। You know, if you succumb to the pressures of this life, it means that you are not truly a Christian. इससे पहले दबाव आए, उस दबाव को तोड़ने का सामर्थ मसीह ने आपको मुझे दिया So है। before you face the pressures of life, Christ has already equipped you with power to cast away that pressure. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हर एक चीज दबाव के अंदर, हर एक बीमारी के अंदर आपको परमेश्वर ने कुंजियां दी हैं लड़ने की। आप लाचार लोग नहीं हैं। हालेलुया, आप लाचार लोग नहीं हैं, आप सामर्थी लोग हैं। आपको परमेश्वर ने वो बल दिया है, वो ताकत दी है उन सबको उखाड़ के फेंकने की। आप बोलना आरंभ कीजिए, कन्फेस कीजिए, यस बीमारी तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है। बीमारी तू मेरे शरीर में आई है, तेरा प्रभाव मुझ पे नहीं पड़ेगा। तू मुझे रोकने, मुझे मसीह के प्यार से, बाइबल पढ़ने से, चर्च जाने से, मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब आप कन्फेस करते हैं, शैतान की सारी ताकतें आपके विरुद्ध गिरते जाती हैं और आप दिन बर दिन बढ़ते जाते हैं। You know, Christ has equipped you with all things which pertain to our life, and that's the reason why you need not fall prey to the pressures of the life or the trap of the enemy or his deception, because Christ has given you that strength so you can rebuke that sickness, you can rebuke that problem, that trial in your life, and you can come up as a conqueror, as a victorious Christian. आपको शैतान से ज्यादा बुद्धिमत्ता दी गई You है। know, God has blessed you with more wisdom than that which the devil has. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। रुबाब से जीना है, जयवन जीवन जीना है। हालेलुया। And so live with pride, live with as a victorious person. देखिए यूना 8 के 44 में क्या लिखा है। Let us read in John chapter 8 verse यहाँ लिखा, 44. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। यह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर नहीं है, क्योंकि उसमें वो सत्य है ही नहीं, और वो झूठ बोलता है और वो अपने स्वभाव से वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठों का पिता है। Here Bible says in John chapter 8 verse 44, you are of your father the devil, and it is your will to practice the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks what is natural to him, for he is a liar and a father of lies and half truths. यस, ये बाइबल के अंदर परमेश्वर ने, यूना ने शैतान की सारी सच्चाई को यहाँ पे लिख दिया है। So here what we see is John is writing the true nature of the devil, how God revealed it to him. हालेलुया। और बाइबल बताती है इस 9वें अध्याय के अंदर एक चीज हुई है। And Bible tells us in chapter 9 something has happened. जब 7 जातियों को जीतते हुए ये लोग जब कनान के अंदर इन्होंने प्रवेश किया यहोशुआ के लीडरशिप You में, know, when the Israelites entered the land of Canaan under the leadership of Joshua, they had to conquer 7 different nations. तो गिमोनी जो लोग हैं ये लोग डर गए। इन्होंने कहा हमारा भी सफाई हो जाएगा, आओ हम छल करें, हम अपने वेश को बदल लेंगे। उन्होंने वेश बदला, कपड़े बदल लिए, फटे हुए कपड़े पहने
उन्होंने अपनी रोटियां ली, सूखी रोटियां, उनमें फुफंदियां लग गई थी। ऐसा दिखाया कि वो दूर देश से आए हैं। जैसे उन्होंने यहोवा परमेश्वर के बारे में सुना कि इज़राइल का परमेश्वर कितना अद्भुत, हम उसके शरण में आए हैं, ऐसा उन्होंने एक ड्रामा किया, छल किया उनके साथ। And so we find that the people of Gibeon realized that the Israelites are coming to conquer the land, and they realized that they had no strength to fight them. And so instead of getting destroyed, they came up with a deceptive plan. They said that let us go to them as if we have traveled from very far and we have come there searching in search for help. And they said that let us wear clothes which are worn out, sandals which are worn out, and bread which is stale and has fungus over it. And when we'll go there, we'll tell them to help us. And in this manner, we'll spare our lives and the lives of a nation because the Israelites will be merciful to us and they will save us. हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल बताती है इज़राइल के सारे प्रधान लोग और यहाँ तक कि यहोशुआ जैसा एक लीडर फंस गया। And so Bible tells us that Joshua, even the greatest leader of Israel, failed he fell prey to the deception of this 3 और 4 Gibeonites. दिन के बाद ही मालूम पड़ा वो तो वहीं के लोग थे। It was after 3 to 4 days that they made a treaty with them. They realized that those people were living in the same land. लेकिन जब संधि बांध दी गई है, संधि तोड़ी नहीं जाती है। And so when they made a treaty with them, they cannot break it. हालांकि यहोशुआ के पास बहुत बड़ा तजुर्बा था, वो अपने परमेश्वर से पूछ सकता था, उसके पास याजक लोग थे, एपोद था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Even though Joshua was a very experienced leader, he knew how God works. He also knew that there was a high priest who would offer his advice to him, and also a God who would speak to him, but still he did not consult God, the Bible says. शैतान की चालाकियों को जानने के लिए आपको बाइबल पढ़ना है। शैतान की चालाकियों का खुलासा होने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है। So if you want to understand the deception of the devil, you need to read the Bible. You need to take the help of the Holy Spirit. अब हम देखते हैं कि जो गिबोनियों के साथ यहोशुआ संधि में हम हमारे विषय में देखते हैं कि एक आक्रामक युद्ध का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक टीचिंग है, एक शिक्षा यहाँ पर हम सीख सकते हैं। So we learn a lesson from the Gibeonites and the story of Joshua that we need to be aggressive in the battlefield. जब उन्होंने देखा कि इज़राइली कनान से मिस्र से निकलने के बाद एक के बाद एक लड़ाइयाँ जीतते जा रहे हैं, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दुभाग दिया है, यर्दन को दुभाग दिया है, विजय पे विजय हो जा रहे हैं, अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने छल के साथ उनके साथ संधि की है। And so the Gibeonites saw that how the people of Israel were redeemed by the Lord God and how they crossed the Red Sea and how they crossed the river Jordan, and then we find that they came to them in deception so that they can make a treaty and save themselves and their nation. और उस छल के अंदर मैंने अभी आपको शुरू में बताया, उन्होंने पुराने कपड़े पहने, जूते फटे हुए पहने, अपना पहरावा बदल दिया, अपने साथ जो रोटियां लेके आए बताने लगे, देखो हम जब निकले तब ताजी थी, आज ये सूख गई हैं, फुफंदियां लग गई हैं, हमारे दाख मधु अब वो फट के नीचे गिर रहे हैं, देखो हमारी हालत को तो देखो, लेकिन हम यहोवा परमेश्वर को जानते हैं, कैसा वो अद्भुत परमेश्वर, हम संधि करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। And so it happened that they made up a plan. They wore worn out clothes and they disguised themselves as sojourners or travelers in that land who had lost all their resources, who had lost their food and water, and they showed them how their sandals were worn out. They showed them their stale bread and how their wineskins were broken and how there was no provisions with them. And so they said that help us and make a treaty with us so that we can save ourselves. कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर यहोशुआ ने ना तो उनके छल को, उनकी चालाकी को समझा और ना ही परमेश्वर से सलाह लेना समझा। And Joshua was not able to look through the deception because he did not consult the Lord God. इसलिए छल संधि होने के बाद 3 दिन के बाद समझने के बाद वो उन पे हाथ नहीं डाल सकते थे। So he made a treaty without consulting the Lord or without inquiring of the Lord. And after the treaty was made, almost after 3 to 4 days, they realized that these were the inhabitants of the same land and they were not able to attack them because of the treaty. क्योंकि बाइबल बताती जो संधि होती थी वो
टिल डेथ होती थी। Because the Bible says that when you make a treaty with a person, it is till your death. आज भी गिबोनी लोग वहां पर उनके बीच में वहां पे हैं। And today too, the Gibeonites are dwelling with the Israelites in the land of Israel. उनको क्या काम मिला वहां पर? And what work did they get? लकड़ी काटने और पानी भरने का काम, उसके लिए यहोशुआ ने उनको नियुक्त किया। They were employed as woodcutters and drawing waters from wells and watering their farms. And so in this manner, they were employed as अगर आप laborers. बाइबल पढ़ेंगे आज भी ये काम वो लोग कर रहे हैं If वहां you read the पर। Bible carefully, you will find that till today, they are doing that same work. यस, मूसा के समय से लेकर अगर हम देखें कि यहोशुआ की अधीनता में लोगों ने अगुवे के विरोध में अब यहाँ पे बुड़बुड़ कुड़कुड़ किया है। मूसा के समय में भी था और इसके समय में, क्योंकि तुमने ऐसे लोगों को कैसे छोड़ दिया, कैसे तुम पहचान नहीं सके। लेकिन संधि बनने के बाद वे उन पे हाथ नहीं डाल सकते थे। So as it was in the time of Moses, how the people murmured against their leadership, in the similar way, the people of Israel started murmuring against Joshua when they realized that Joshua had made a mistake by making a treaty with unknown people without even inquiring of the Lord. लेकिन एक चीज को याद रखना है आप लोगों But को, let us remember one thing, यहोशुआ की एक गलती उसे बाद में महंगी पड़ी है। that Joshua's this mistake which Joshua made cost him very dearly in the future. आज इस सुबह में मैं कुछ मुद्दे आपके साथ बांटना चाहता There हूँ are certain points I want to share with और you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छल से सावधान रहिए। And this is what I want to help you understand. Be aware of deception. अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप गिर सकते हैं। If you are not aware of it, then you will fall into that आपको और trap. मुझे ये जानना है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज शैतान को एक्सपोज करना चाहता हूँ। शैतान और उसकी सेना ये बेहतर जानती है कि हाँ और मैं मसीह के अंदर हैं, वो हमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। Remember one thing, that the devil and his cohorts very well know that you and I who are in Christ cannot be harmed or touched by the devil. जब आपने यीशु मसीह को अपना जीवन ये उद्धारकर्ता के रूप में दे दिया है, अब यीशु जब आपके जीवन का सरताज बन गया है, आपके जीवन के अंदर है, शैतान आपको हाथ नहीं लगा सकता। ये वो बेहतर जानता है, उसकी सेना भी आपको हाथ नहीं लगा सकती है। When you and I have surrendered our life to the Lord and the Holy Spirit is in us, the devil also realizes one thing, that he cannot touch you, he cannot harm you, and neither can his minions. और उसके पास या उसके हाथों में आपको मात्र एक ही है, आपको धोखा देने का एक ही हथियार है, वो है छल और झूठ बोलना। And there is only one way for him to fool you, and that is through deception. यस, वो झूठ बोल के ही आपको अपने शिकंजे के अंदर कस सकता है, फंसा सकता है, आपको नाश कर सकता है। And it is through lies that it deceives us, and he can lie to us, and then we will fall prey to his trap. क्योंकि स्वभाव से वो झूठ बोलता है और उसे झूठों का बाप कहा गया है, सब बाइबल बताती है। Because the Bible clearly tells us that he is a liar from his own nature. It is a produce of his own himself, and so he lies easily. आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 12 के 9 और 20 के 3 में परमेश्वर यहाँ पर यूहन्ना इस प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रकाशन को पाकर इस शैतान के लिए क्या लिखता है। And so let us read in Revelation chapter 12 verse 9 what John the apostle is writing with revelation about the devil which he received from the Lord. पढ़िए। तब वह बड़ा अजगर, तब वो बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला बस है। इनफ, भरमाने वाला मतलब झूठ बोलने वाला। आज भी शैतान झूठ बोल बोल के लोगों को शिकंजे के अंदर लेता है। हालेलुया। छल करना उसका ये, क्योंकि वो जान गया है मैं और मेरी ताकत खत्म कर दी है मसीह ने उस क्रूस के ऊपर। याद रखिए, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के सदा परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्रूस के ऊपर परमेश्वर यीशु ने उसका खुल्ला तमाशा बना दिया है, उसे वहाँ से खींच के निकल लेके आया है और वहाँ से जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई है। हालेलुया। जब ये आपके विरोध में आता तब कहिए, शैतान मेरे यीशु ने तेरा खुल्ला तमाशा बनाया है, चले जा, नहीं तो बचा कुचा तेरा तमाशा हम बना देंगे। हालेलुया। ये बात याद रखनी है, वो आप पे हावी नहीं हो सकता है। वो भरमाने वाला है, भरमाता है, आपके विरोध में अनेकों को खड़ा करके भरमाएगा, लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। और जब ऐसी चीज़ें परिस्थितियाँ तो आपको खड़े होना है, आपको टेंशन में नहीं जाना, लेकिन उन चीज़ों को तोड़ना है। अगर वो आप पे हावी हो गए तो आप डेफिनेट मरेंगे। आपको उस पे हावी
हावी होना है, क्योंकि वो सामर्थ, वो कुव्वत, वो अभिषेक, वो मस्सा मसीह ने आपको और मुझे किया है। हालेलुया। आइए 20 का 30वां वचन पढ़ते हैं। Revelation chapter 20, verse 3. यस। और उसे अथाह कुंड में डालकर अथवा कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी मोहर भी लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक हाँ जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। फिर ना भरमाए। हालेलुया। ये 1000 साल के समय उसको ना भरमाने के लिए आज वो क्या कर रहा है? भरमा रहा है, एक दूसरे को भरमा रहा है, एक दूसरे जातियों को भरमा रहा है। अब जो चीज़ें हमारे देशों के अंदर उल्टा होते हुए देखते हैं तो सोचना है ये सारे भरमाने वाले। बहुत सारी आत्माएं, कभी परमेश्वर मौका देगा तो मैं बताऊंगा, एक्सीडेंट करने वाली आत्मा हैं, रेपिस्ट ये जो होते हैं, ये आप बोलते हैं रेप कर दिया, नहीं, ये आत्माएं हैं, ये जो उन लोगों के अंदर हावी होकर ये देश के अंदर, राज्यों के अंदर, परिवारों के अंदर ये अशांति लाने वाली ये दुष्ट आत्माएं हैं। अगर ये चीज़ें हैं, हालेलुया। और कई जगह ऐसा भी होता है कि जैसे कल हम एक आपने बात कर रहे थे, गिदोन से बात कर रहे थे, अगर आपने कभी सुना होगा, पुराने लोग होंगे तो अगर आप खड़की स्टेशन में जाएंगे, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ एक पोस्ट ऑफिस था। वो पोस्ट ऑफिस के पास एक कुआं था। वहाँ पर एक ऐसी दुष्टात्मा काम करती थी कि वहाँ पर जबरदस्त वहाँ पे एक्सीडेंट होते थे और एक्सीडेंट के अंदर लोग खत्म हो जाते थे वहाँ पे। ये काम है कि ये जो आत्माएं जो हैं इनको खत्म करना, मतलब ये ताकतों को बांधना, ये आपका मेरा काम है। वहीं वो चीज़ें जो रिपीट होती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम कहते हैं हम तो स्टडी थे, कैसे हो गए हम नहीं जानते, लेकिन ये सारी वो चीज़ें होती हैं। हालेलुया। इन आत्माओं को बांधना आपका मेरा कर्तव्य है। हालेलुया। यस। And so the Bible says that the devil is a deceiver. He deceives you every time when he speaks a lie with you. And so we should not fall prey to our circumstances. Instead, rebuke him, because Christ Jesus has already destroyed him. He has already defeated him. And there are certain spirits which operate in certain times, and we need to bind those spirits because they might harm us. And so let us remember one thing, that the devil cannot overpower you because he is already defeated. His powers are stripped off. And when he comes to you, you should rebuke him in the power of God, because you are given authority. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कलीसिया के विरोध ये दुष्ट ताकतें कैसे काम करती हैं, कैसे छल करती हैं। And this is what I am trying to help you to understand, that how the devil and his evil spirits work against the church. मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि मसीह लोग अपने स्थान को नहीं समझते कि मसीह के अंदर उनका क्या स्थान है। It's a very sad thing to say that many Christians do not understand what is their position in Christ and how they should take their standing. परमेश्वर ने हमें वो अलौकिक सामर्थ्य दी है। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। You see, God has given his authority over heaven and earth, and he himself says that I have given it to you. शैतान के सारे गढ़ों को खाड़ के फेंकने का अधिकार परमेश्वर ने आपको मुझे दिया And है। so God has given us authority to uproot and to pull down every stronghold of the enemy. यस, हालेलुया। Hallelujah. आप विजय से विजय के अंदर हैं। हालेलुया। You are walking from victory to victory. बोलो यीशु मसीह की, Jai. बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमें लज्जित निराश होकर नहीं जीना है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर हमें जीना है। हम विजयी लोग हैं। So don't live a life which is a helpless life, or don't let your necks be hanging. You should at least, live a life as a victorious person. Live your life head high. बाइबल बताती है शैतान मसीह की देह के विरोध में एक ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करके वो आपके पास आता है। Bible also tells us that the devil can take a form of a bright angel and approach you. लेकिन वो स्वर्गदूत नहीं है। But he is not an angel. वो रूप बदल सकता है, He can transform himself into लेकिन an वो angel of तेजस्वी light. स्वर्गदूत नहीं है। But he is actually not an angel अगर now. आपके पास परखने की आत्मा है, If you have a spirit of आपके पास वर्ड ऑफ नॉलेज discernment, है, if you have word आप of 2 knowledge, मिनट में उसको हटा देंगे वहां you will से। discern who is the spirit talking to you, हालेलुया, and you will rebuke him. हालेलुया। इन Hallelujah. दिनों में कलीसिया को जो करना है, जो चीजें लेनी है, वो चीजें लेने में वो समर्थ रह गई हैं। अगर ये चीजें कलीसिया के पास होती तो शैतान का कब का राज्य खत्म हो जाता और कब का रैप्चर हो जाता, और आज हम यहाँ नहीं स्वर्ग में होते। In these days, the church has failed to realize the authority and to rebuke the devil, and that's the reason why there's a delay in the coming of our Lord. Because if we would have lived a victorious life, if we would have exercised our authority beforehand, Jesus would have come really soon. परखने के इस दान के बिना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आसानी से धोखा खा जाएंगे। So without the gift of discernment of spirits, you will be deceived
received very easily. हाँ ये सारे दान वर्तन कहाँ हैं? So where are these gifts? अभी तक बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, लेकिन सब बाइबल में है। Many people don't even know where are these gifts. They बाइबल just say it में is ये mentioned in दान the Bible. वरदान बाइबल के अंदर रखने के लिए नहीं दिए, ये आपको दिए हैं कि आप इस्तेमाल करें। It is not just a literature which is written in the Bible, it is a reality for a Christian, and so a Christian should live अगर it. ये दान वरदानों से आपको परमेश्वर ने सुशोभित किया है या पवित्र आत्मा ने दिया है, आप स्वयं को और दूसरों के लिए एक आशीष का आप कारण बन And so सकते हैं। if God has blessed you with this gift of discernment of spirit, it is a blessing for not only you, but also for others around you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान की जो चालबाजी है, उसकी अज्ञानता आपके लिए एक भयानक हार का कारण बन जाती है। So let me tell you that the deception of the devil becomes harmful for us, it becomes fatal when we are ignorant to his tactics. दूसरे कोरिन्थियों उसके 2:11 को पढ़ोगे तो वहां लिखा है, पौलुस लिखता है, आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। 2 Corinthians 2:11 says that you are not ignorant to the wiles of the enemy. कई बार हमारे पास ज्ञान होते हुए भी हम मौका दे देते हैं उसको। And many times, even though we have the knowledge of his evil schemes, still we give him an upper hand. आइए देखते हैं इफिसियुस के 6:11 में संत पौल क्या लिखता है इस कलीसिया Ephesians को। chapter 6, जल्दी verse से 11. यस 6:11 परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह शैतान सको। की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये मत बोलो कि मैं सारे हथियार बांध के मैं यहाँ वहाँ खड़ा हो जाऊँ, नहीं, हमें शैतान के सामने खड़ा होना है। ये सारे हथियार बांध के परमेश्वर के सामने नहीं, शैतान के सामने खड़ा होना है। ये तो परमेश्वर ने दिए हैं आपको। हालेलुया। क्या कि आप उसकी सारी चालाकियों को क्या करें, ध्वस्त कर दें, ध्वस्त कर दें और एक विजयी जीवन आप जिए। And so the Bible here tells us, put on the full armor of God so that you may be able to stand up against all the schemes and the strategies and the deceits of the devil. So when you have the armor, it is not for you to stand before God, it is for you to stand against those attacks which the enemy brings. कई बार शैतान जो है आपको प्रेरितों के समान धमकाने डराने का वो प्रयास करता है। So many times the devil uses this deceit or this scheme of threatening you just like he did against the apostles. अगर आप प्रेषितों के काम उसके 4 से 4 अध्याय के 13 से अगर 21 को पढ़ोगे तो हम वहां देखते हैं, वहां के बहुत सारे अधिकारियों ने उनको बुलाया और धमकाया और कहा यीशु का नाम या उसका प्रचार आपको नहीं करना है। And if you read Acts chapter 4 verses 13 onwards, you will find that the Sanhedrin or the council of the priests called the apostles and they threatened them not to preach in the name of Jesus. ये शैतान बहुत चालाक है, शातार एकदम बुद्धिमान है। वो अगर वो आपकी उन्नति को आत्मिक जीवन में रोकने में यदि अगर वो असफल हो जाता है तो दूसरे कार्यों से वो आपको पकड़ना चाहता है। वो परमेश्वर के वचन को मरोड़कर धूर्तता के द्वारा छल करके आपको नष्ट करने की कोशिश करता है वो। You see how cunning and shrewd the devil is. Whenever he is not able to hinder your personal spiritual growth, he will use mediums which are external to threaten you or to pull you down. आप जानते हैं कि पतरस जो है इसका इस्तेमाल शैतान ने किस प्रकार किया। वो यीशु मसीह को क्रूस पे जाने से रोकना चाहता था। For example, how the devil was using Peter to stop Jesus from going on the cross. अगर आप मत्ती उसके 16 के 23 को पढ़ेंगे तो वहाँ पतरस कहता नहीं नहीं मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। So if you read Matthew chapter 16 verse 23, you will find how Peter says to the Lord, Lord, far be it from you that you will be crucified. अगर आपके साथ कोई होता, अगर यीशु मसीह की जगह और कोई होता तो वो कहता अरे कितना प्यार करता है, कितना प्यार मेरे लिए बह रहा है, ये मुझे मरने से रोक रहा है। लेकिन शैतान जो बात कर रहा है, यीशु के पास वो परखने वाला परमेश्वर है, वो तो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। उसके अंदर ईश्वरीय तत्व थे, उसके अंदर क्या बोलते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज था, वो तो खुद वचन था। शैतान क्या बोल रहा है इसके मुंह से, और वो भी एक चेले के मुंह से, इसलिए उसने उसको धमकाया क्योंकि वो उद्धार के काम को रोकना चाहता था। यदि यीशु मसीह आपके मेरे लिए मारा नहीं जाता तो आज आप में छुड़ाए नहीं जाते। हालेलुया। ये आनंद नहीं करते, हम उसको धन्यवाद नहीं देते। हालेलुया। हम सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। You know, if we would have been in Jesus' place and Peter would have said those words to us, that far be it from you that you would be crucified, we would be so happy, we would be overflowing with love for Peter because we would realize that how much he loves us. But we find that Jesus was spirit-filled. He himself was the Word incarnated in flesh. He was divine, and that's the reason why he knew how to discern between the words of Peter and the words of the devil, and so he rebuked him.
बाइबल बताती है पौलुस के बारे में हम देखते हैं। Bible also talks about Paul. प्रेषितों के काम 16वें अध्याय के अंदर हम लोग If देखते you हैं read Acts chapter 16, फिलिप्पी शहर के अंदर वो प्रचार करने के लिए गया he है। was in a city called Philippi. वहां पे एक दुष्ट आत्मा से भरी एक लड़की भविष्यवाणी करती है And there was a woman who was filled with evil spirits and she was और अपने prophesying. मालिक के लिए बहुत पैसा उसने कमा लिया And है। her master earned many profits through her. एक याद रखिए, परमेश्वर के लोगों जो सच में परमेश्वर के जन हैं, भक्त हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, जो आत्मा और सामर्थ्य से भरे हैं, जो नेक हैं, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, दुष्ट आत्माएं उन्हें पहचान लेती हैं और उनके वो अभिषेक को उनके पास आने से रोकते हैं। वो चिल्लाते हैं क्योंकि वो अभिषेक जो निकलता है वो उनको छूता है और जलाता है। इसलिए जैसे ही उसका संपर्क पौलुस के इसके साथ में हुआ और वो चिल्ला के कहने लगी, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर हैं जो हमें उद्धार का मार्ग सिखा रहे हैं। So remember, people of God, whenever a person who is demon possessed encounters a true man of God who is spirit filled, who is anointed, who knows the presence of God and who can discern between spirits, that evil spirit cannot stay in that person's body because the fire of the anointing will burn that evil spirit. And so that's the reason why when this woman saw that Paul and his companion were traveling from that place, she proclaimed loudly that, behold, the servants of Most High God who preach to you the way of salvation. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. शैतान कई बार झूठ बोलता है लेकिन यहाँ सच बोल रहा है वो। You see, the devil is always a liar, but this time he spoke the truth. पौलुस के लिए सटीक बता रहा है, ये परम प्रधान का सेवक है और हमें उद्धार का मार्ग सिखा रहा He है। perfectly described what was the profile of Paul, and so he says he is the servant of the Most High God, preaching the way कई of बार देखा salvation. गया शैतान खुद ही यीशु मसीह का प्रचारक बन जाता You know, है। sometimes the devil can be a preacher or a promoter of Jesus. वो करने कुछ जाता है और कुछ ही हो जाता है। Actually, he हालेलुया। wants to do something against the Lord, but it turns out that he has done something in favor of the Lord. शैतान को लगा रोमियो की से उसकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, उसके मांस के मांस, उसकी हड्डी के हड्डी को निकाल देंगे, और उसने कराया वैसा हो ही रहा था। लेकिन वो नहीं जानता कि प्रभु परमेश्वर क्या करने जाता है। उस मांस के निकले उसके फटके से परमेश्वर ने आने वाले कलीसिया युग के लिए, उस पे भरोसा करने वालों के लिए चंगाई रख दी है। हालेलुया। And we find that the devil also thought that the Roman soldiers will beat Jesus and they will harm him so that he will die. And therefore Bible says that his back was so beaten that there was no flesh left on his back. His bones were exposed. The devil thought that now Jesus is gone, but actually it was a plan of God for our healing, that by his stripes we are healed. इसलिए आपके पास परखने की आत्मा होना बहुत जरूरी है। And so you need the spirit of discernment. मान लीजिए आप भी वहां होते उस समय, Imagine that if you are in that place, मान लीजिए आप एक सेवा कर रहे हैं or you are a minister और of the आपके पास gospel, ये दान वरदान नहीं है, and if you don't have this gift, और आप देख रहे हो लड़की दुष्ट आत्मा से भरी हुई भविष्यवाणी कर रही है, and you see that this girl is coming to you and she proclaims about you that you are a man of God तो or a आप क्या woman of करते God, हो? आप नेक्स्ट मीटिंग के अंदर प्रवक्ता करके उसे बुला लेते हैं। what would your response be? You would have invited that same girl as a spokesperson for your meeting. सर आज यही तो हो रहा है ये And this is what is happening भविष्यवाणी nowadays. भविष्यवाणी भविष्यवाणी के पीछे लोग You भाग know, रहे हैं। people are running behind prophecies. मैं नहीं कह रहा हूँ कि भविष्यवाणी नहीं होनी Now, चाहिए, I don't defame prophets, इतना क्यों आप उस पर डिपेंड है? but let us not depend परमेश्वर depend पे, on पवित्र आत्मा the पे, prophets परमेश्वर के more. वचन पे डिपेंड हो। जो रोज भविष्यवाणी आपको घर बैठे ओ हालेलुया जब भी मनन कर रहे हैं, एक नया प्रकाशन, एक मार्ग परमेश्वर आपको बताएगा। You see, do not depend on a man of God or a woman of God or a prophet for receiving revelation or prophecies for your life from the Lord. Instead, read the word of God, and when you are faithful with the Lord in reading the word, He will give you prophecy after prophecy. Every day you read the Bible. मैं बहुत सारे विश्वासियों को देखा हूँ, I have seen many सारे believers. भविष्यवक्ताओं के नंबर उनके मोबाइल में होते You हैं। know, they have saved the numbers of all the prophets in their contacts. खांसी भी हो गई उसको या सर्दी भी हो गई तो फोन कर देंगे, सर क्यों जरा प्रार्थना कीजिए, क्या परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए। You know, even if that believer suffers from a common cold or flu, मैं- they call that man of God to मैं ask आपको him, बताना what does चाहता the हूँ Lord say? परमेश्वर की इच्छा ये है जो खाने के बाद रात के समय में आप फ्रिज में से ठंडा पानी और 2 4 5 5 जो आइसक्रीम खाते हैं वो खाना बंद कर दीजिए, सर्दी आपकी खत्म हो Let me जाएगी। give you a prophecy right now. This is what the Lord is saying to नो you. नॉट प्रोफेसी, मुझे ये ऐसे में बता रहा हूँ मैं। हाँ, इट्स नॉट प्रोफेसी। So let me tell you what does it mean? What is the Lord trying to say to you? That if you stop eating ice cream after your dinner and stop drinking cold water from the fridge, you will be healed.
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अरे घुटने टेकिए, परमेश्वर के पास प्रार्थना कीजिए। So instead of that, kneel down and pray to the Lord. अगर है तो इसके लिए प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम से सर्दी में तुझे निकलने की आज्ञा करता And हूं। if you have any cough or cold, pray in the name of Jesus, rebuke it. आप जानते हैं कई लोग क्यों ये बीमारियों के ग्रस्त हो जाते हैं? You know why people are always खाने से oppressed पहले with बोलते हैं diseases? मैं ये खाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, तो आपको होना ही है वो। Before they eat certain foods, they say, if I eat this, such and such thing can happen to me, and it happens. हालेलुया, Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। जय। हम देखते हैं पौलुस के अंदर पौलुस तुरंत उसके अंदर की उस दुष्ट आत्मा को पहचान के उसे जानता है, डांटता है, और तुरंत वो लड़की में से वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है और अच्छी हो जाती है। And so we find in the story of Paul and that woman how Paul discerned which spirit was operating through her, and he rebuked that evil spirit, and she was delivered. सर आप जब भी नए क्षेत्रों में जाते हैं, कहीं नई जगह जाते हैं, बड़े सतर्क रहिए। You know, हालेलुया। when you travel to new places, you should be alert. आत्मा को पहचानिए और उनके ऊपर अपने अधिकार को जताइए। You should be able to discern the spirits which are operating in that place, and you should exercise your authority in that place. यस, केवल शरीर और लहू के साथ व्यवहार करने में के समय ना ये उसमें गवाइए आप लोग, ये बहुत आपको जानना और पहचानना है ये। And so let us remember, do not waste your time in dealing with flesh and blood. आप यदि किसी बीमारी के लिए आपको प्रार्थना जाकर आप कर रहे हैं तो ऊपर ऊपर मत कीजिए, उसके जड़ तक जाइए, वो जड़ कहाँ है वहां से उसे काटिए। If you're praying for a sick person, don't just pray a superficial prayer. Go down to the roots and find out what is the root cause of that sickness. आपको पहचानना है ये क्यों आई है, उसे पहचानिए और उसको जड़ के साथ काटिए। So you need to realize why has this spirit of infirmity entered that person, and when you know the root, you can chop it off. अक्सर बाइबल के अंदर लिखी अनेक बीमारियां शैतान के द्वारा डाली You गई know, हैं। usually we find in the Bible that all the people who are आपको oppressed जानना with है ये diseases, they were फिजिकल from the है devil. या ये दुष्ट आत्मा की तरफ से है। So let us understand this sickness, is it because of my physical habits or is it because of the evil आइए spirits? देखते हैं मत्ती उसका 17वां अध्याय 14 और 15 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Matthew chapter 17. यस, जब वे भीड़ के पास पहुंचे जब वे भीड़ के पास पहुंचे, तो एक मनुष्य उसके पास आया एक मनुष्य उसके पास आया, और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता आग है। और पानी में गिर जाता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया चेलों के था, पास लाया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा। और वह- हालेलुया। यीशु मसीह का देखना बहुत अलग था। स्कैन किया क्या है और वो जाना, वो दुष्ट आत्मा ने वो बीमारी को उसके अंदर रखा था, इसलिए वो आग और पानी में गिर जाता। आप सोचिए कितनी वेदनादायक वो दृश्य होता होगा, वो पिता जब देखता होगा तो कितना ये होता होगा। अब तक चेले पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे, अब तक वो उनके अंदर वो पहचान नहीं थी, लेकिन हम बाद में देखते हैं पेंटिकुस्त के बाद यही चेले जो डरपोक थे, इन्होंने कैसे जबरदस्त प्रभु के राज्य को बढ़ाया है, काम किया है, प्रार्थना की है। अब पवित्र आत्मा उनको चलाने लग गया था। हालेलुया। इसलिए बीमारी के रूट तक आपको जाना है। जैसे यीशु ने उसका स्कैन किया, ये रूट कहाँ है, कौन है, उस बीमारी को नहीं, उस दुष्ट आत्मा को डांटा। बीमारी के साथ वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और लड़का भला चंगा हो गया। So we read here in this story in Matthew chapter 17 verse 14 onwards that there is a father who brings his son who is suffering from epilepsy. He is a lunatic, the Bible says, and so he is demon possessed, and Jesus discerns by this gift of discernment who is that evil spirit, and so he rebukes it and he delivers that boy. And the disciples were not able to do it because they were not yet filled by the Holy Spirit, but these same disciples, after they were filled by the Holy Spirit, they started doing the same works which Jesus did, and they started glorifying God. जब आप पवित्र आत्मा में चलते हैं और पवित्र आत्मा के सुनते हैं तो वो आपको सारी चीजें बताता है, खोलते जाता है। So when you flow with the Holy Spirit and when you listen to the Holy Spirit, He will reveal to you everything.
आप जानते हैं कि बाइबल के अंदर हम देखते हैं शैतान ने शिमशोन की कमजोरी को उसकी बुलाहट से अलग करने के लिए एक स्त्री का उपयोग किया है। And we read in the Bible that how the devil used the weakness of Samson against his calling, and his weakness was women. क्या वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्यों बुलाया गया है? Didn't he know that what was the purpose of his calling? वो तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति He था। was actually filled by the power of the Holy Spirit. हाँ, ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है। But we should understand why are those things आपके happening. ऊपर कितना अभिषेक है, आपको किस काम के लिए बुलाया है, शायद आप इतना नहीं जानते, गंभीर है, लेकिन शैतान आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए बड़ा गंभीर है। You know, you do not realize the power of your calling and the grace which is upon you, and that's the reason why the devil knows how he can beat you in your own game. शिमशोन अपनी बुलाहट के अंदर गंभीर नहीं था, अभिषेक के अंदर गंभीर नहीं था, परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं, इसीलिए तो वो गिरा दिया गया। लेकिन यूसुफ को देखिए, वो छल पूर्व करने के बावजूद भी शैतान वो उसके अंदर गिरा नहीं पाया, उसके ऊपर कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि बाइबल बताती है यूसुफ परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। जब तक आप दोनों एक रहेंगे, तीसरा आपको छू नहीं सकता, ना गिरा सकता है। बोलो यीशु मसीह की यस। So we find that on the other hand, the example of Joseph, how he was deceived and he by the woman, but he did not fall prey to that trap. But we find here that Samson, even though he was filled by the Holy Spirit, did not realize the deception of the enemy, and he fell prey to the trap of the enemy. And so that's the reason why we need the fellowship of the Holy Spirit, so that we will be able to realize that how the devil is trying to deceive us. यदि आप आत्मिक जीवन में एक नया कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, तो आप आत्माओं का पता लगाइए और निरंतर परमेश्वर को ढूंढते जाइए, उसके साथ रहिए। So if you want to take a new step in the realm of the Spirit, you need to search for the souls who are in need, and then the Holy Spirit will lead you to them and He will guide you to save them. यदि आप उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए इस संसार को जीतने के लिए आए हैं, तो शैतान उन्हें इस संसार के अधिकारी होने का इतने आसान से वो मार्ग नहीं खोलेगा, आपको छोड़ेगा नहीं वो। You see, if you have come as an ambassador of God to save the souls from this world, then the devil will not spare you just like that. He will not leave you. He will try to attack you. हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर आया, And so we find that when Jesus Christ came to this world, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि शैतान जो है यीशु मसीह के पास जाता है और उसे इस संसार का अधिकारी बनाने का प्रस्ताव देता है। the devil himself approaches Jesus with this offer that if he bow down to him, he will make him the ruler of the whole world. सिर्फ एक बार मुझे प्रणाम कर दे, सारी दुनिया तेरी। He just says, I'll give you everything I have, just bow down to me once and everything is yours. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की जय। तो शैतान जब यीशु को नहीं छोड़ा, लेकिन यीशु ने उसको वचन के द्वारा भगाया, लिखा है ऐसा कह के उसको बताया और उसको वहां से नौ दो करे होकर भगाया उसे परमेश्वर ने। You see, when the devil can attempt to test Jesus, he will not even spare us. So let us remember one thing, how Jesus conquered every test. He spoke the word of God. He says it is written, and that is the same tool which we should use. यीशु मसीह ने उस लड़ाई को जीता है, So Jesus Christ has conquered that battle वचनों के द्वारा जीता है। by the word. लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 15 से 18 आप लोग घर में पढ़ लेना। If you read in Luke chapter 4 verses 14 onwards, you will find परमेश्वर का वचन निरंतर आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। you need to meditate on the word of God continually. यस, जो शैतान जो है ये परमेश्वर के वचन का जो वचन का जो इस्तेमाल है वो गलत रीति से करता है, उसका अनुवाद भी आपके सामने गलत करके दिखाता है। You know, the devil can twist a word of God, he can twist a scripture to deceive you or to confuse you. लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा वो जो छल करके आपके पास आता है, आप तुरंत उसे पहचान लेंगे वचन में क्या लिखा है, आप उसका सामना करेंगे। क्योंकि वचन जो है, क्योंकि बाइबल बताती है तुमने सत्य को जाना और सत्य ने तुमको क्या किया है, बंधन मुक्त किया है। और बंधन मुक्त कहां से होगा, जब तुम परमेश्वर के वचन में तुम ऑटोमेटिक उन आत्माओं को पहचान लोगे। बाइबल में तो कुछ और लिखा है, ये सब कुछ अलग सिखा रहे हैं। आप सतर्क हो जाएंगे और अपने करीबी वालों को भी बोलेंगे भाई इसे बच के रहना, ये कुछ तो भी अलग बताता है। So let me tell you, people of God, if you start reading the word of God regularly and start hearing the voice of the Holy Spirit, you will not be deceived very easily.
easily by people who twist or turn the doctrines of God into wrong teachings. And so when you come across such false preachers, you will be easily able to discern what they are teaching and warn others too against them. एक आत्मिक जीवन में सही मार्ग में आगे बढ़ने का सरल मार्ग है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। And so there is a straight and a simple way to grow in the Lord, and that is to read the word. कुछ बातें बता के मैं समाप्त कर रहा हूँ। So there are certain things I want to share, and मैं then I'll आपको बताना close. चाहता हूँ, शैतान आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। Let me tell you that the devil is not at अपने par पास with वाले को you. देखिए और कहिए शैतान तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता है। Say to your neighbor, the devil is not at par with you. हालेलुया। Hallelujah. क्यों मालूम क्या? क्योंकि आप मसीह में जैवन से बढ़कर हैं। Do you know why? Because you are more than a conqueror in Christ. हालेलुया। Hallelujah. मसीह में आप जैवन से बढ़कर लोग हैं। In Christ, you are more than a conqueror. शैतान हमारे इर्द गिर्द भी नहीं बैठता है। And the devil does not even sit next to us or around us. हमें परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ्य दिया है। Because God has given us that authority and that power. केवल छल के द्वारा वो आपका सामना कर सकता है, छल के द्वारा आपको गिरा सकता It है। is only through deception and hidden weapons that he can fool you or he can deceive you. झूठ बोल के आपको फंसा सकता है, He can speak lies so या that you will be झूठ deceived. बोलने वाले लोगों को आपके इर्द गिर्द ला सकता Or है। he can bring people who are liars and they'll come around you. उसके झूठ से आप अनजान मत बनिए। And so do not be ignorant of this fact that he is a अगर ये liar. सब इर्द गिर्द आपके चीजें हो रही हैं, तुरंत आपे में आ जाइए और यीशु के नाम से उन झूठ उन आत्माओं को यीशु के नाम से बांध दीजिए। देखिए दूसरे समय में जो लोग आपके बारे में झूठ फैलाते हैं ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे कैसे हैं ब्रदर, बोले हाँ ठीक है ब्रदर। आप समझ जाएंगे कि सही सटीक बैठा है, प्रार्थना का उत्तर सही आया है। You see, हालेलुया। people of God, when you find liars and deceivers around you, people who backbite, people who talk evil about you behind your backs, do not respond to them. Instead, start praying for them. And when you pray, you will find the results that when those same people who are against you, they will come and greet you, and you will know that God has answered your prayers. यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपकी बुलाहट और आपकी सेवा के अंदर ये झूठ ये कपट जो है, ये शैतान जो है, ये आपको बांधा कर देगा, आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। So if you do not pray, this deception of the enemy will hinder your ways in your ministry, in your spiritual life. अगर आप आत्मिक जीवन में और आपकी सेवा में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये शैतान की ओर से है, वो आपको रोकना चाहता है। If you are struggling in a spiritual life, if you are struggling in your ministry, it is from the devil. He wants to hinder your ways. आप उसके साथ कोई भी संधि ना कीजिए। So don't make any compromise or any treaty with him. अंधकार के हर एक कामों को नाशत कर यीशु के नाम से डांटिए। And rebuke every works of the devil and darkness in the name of Jesus Christ of Nazareth. हालेलुया। Hallelujah. आपका चुप रहना उसके साथ संधि करना है। You know, when you are quiet regarding your circumstances, you वो are actually सारी making a चीजों को treaty. सहना संधि करने के समान है। Bearing your situations and going through them without any action against उसे them is डांटिए, making a उसे treaty. धमकाइए। अंधकार के सामर्थ के साथ उसकी ताकतों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं So है। take your stand, rebuke the enemy and cast him out, because we have no treaty, no connections with the devil and his cohorts. मैं आपको कहना चाहूंगा अधिकतर परमेश्वर के वचनों को बोलिए और अधिकार से प्रार्थना कीजिए, ये आपके लिए बूस्ट है। हालेलुया। कभी कभी दूध पीने में अच्छा नहीं लगता ना तो बॉर्नवीटा डालते हैं, जरा टेस्ट बढ़ जाता है। हालेलुया। तो वैसे ही वचन और क्या बोलते हैं, अधिकार की प्रार्थना का इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। हर एक गढ़ गिरते हुए और आप विजय में से विजय ही जाते हुए देखें। जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना वो बहुत जल्दी टूट जाएगी। हालेलुया। आप बंधे हुए नहीं हैं, आपको बांधने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की Jai. इसलिए यीशु ने कहा जो 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 मत्ती 18 उसके 18 के अंदर उसने कहा है कि जो तू पृथ्वी पे बांधेगा मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो पृथ्वी पे खोलेगा स्वर्ग में। इसके प्रकाशन को जानिए, आपके पास खोलने और बांधने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। ये अधिकार होते हुए समझते हुए भी यदि आप कुछ करने में असमर्थ हैं तो ये दुष्ट आत्माएं हावी हो जाएंगी, आपको त्रस्त कर देंगी, आपकी शांति को हटा देंगी, आपके घर का माहौल बिगाड़ देंगी। आप ना खा सकेंगे, ना आप जी सकेंगे, ना आप सोच सकेंगे। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ना रात भर मला काय त्रास झाला, ये झाला, बेचैन झाला। हालेलुया। कई चीज़ें होती हैं लेकिन उसको तुरंत वहाँ तोड़िए, नहीं तो हर एक रात 365 दिन अगर आप नहीं सोए तो आपकी हालत क्या होगी। हालेलुया।
डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको मानसिक रोग करके एक आपको किया जाएगा। कई लोग मानसिक नहीं होते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेके सच में वो वैसे बन जाते हैं, और बनने, मैं कहूँगा बनने से बेहतर है उन्हें बना दिया जाता है, खुद अपने आप को बना लेते हैं। सर, मसीह में आने के बाद आपके ऊपर ना कोई शाप, बाइबल बताती है, गिनती में लिखा है, याकूब के वंश के ऊपर ना तो कोई जादू टोना टेच की कुछ नहीं चलेगा। हालेलुया, हो हालेलुया। हम विजय से विजयी लोग हैं। हमारे तंबू, हमारे घर के अंदर कोई रोग प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर हो भी गए हैं तो कमान बांधिए अपनी कमर को यीशु के नाम से। प्रभु तेरा वचन तो ऐसे कहता है, मेरे साथ क्यों, तेरा वचन सामर्थ्य है, मैं तेरे वचन को अब खोल रहा हूं प्रभु। यहाँ अंधकार नहीं होगा, यहाँ प्रकाश होगा, क्योंकि मैं प्रकाश के अंदर मुझे बुलाया गया, मैं ज्योति की संतान हूं। आप कन्फेस कीजिए, बोलिए, आपकी प्रार्थना सामर्थ्य हो जाने दीजिए। देखिए विजय दौड़ते हुए आपके पीछे आएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यस। So, people of God, let us understand one thing, that praying with authority and praying with the word of God is imperative for us to gain victory, because it is a boost for our faith. And so, instead of falling prey to the deception of the enemy, instead of living helpless life, let us take up authority and claim that because the word of God says so, and it is not happening in my life, I rebuke the devil in the name of Jesus and I receive what the word has for me. मैं आज एक कीवर्ड देना चाहता हूँ आपको। Let me give you a key बड़े word. साहस के साथ अपनी बीमारी और उन दुष्ट आत्मा को डांटिए। You know, with great courage, rebuke that sickness and that evil spirit. हालेलुया। कर सकते हैं क्या? Can you do it? क्या फोन करके मुझे बुलाएंगे? Or will you call me for prayer? हेलो, कितने लोगों को दुष्ट आत्मा से डर लगता है? How many of you are scared of the evil spirits? मतलब नहीं डर लगता है, तो कौन डर रहा है फिर? डर कौन रहा है फिर? अरे बोलिए ना, आप भी डर रहे क्या बोलने के लिए भी? अरे यहाँ बोल देंगे तो बाहर जाने के बाद क्या होगा? हेलो, बोलो यीशु मसीह की। Jai. सास के साथ ये कीजिए सर। You know, do it with great courage. आमेन, हालेलुया। अगर आप ऐसे करते हैं, आप कमाल की जगह में रहेंगे। Now, when you do it, or when you exercise your authority with courage, you will be in a new level. लगातार अपने अधिकार के विचारों को आप बढ़ाते जाइए, आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे। So increase those thoughts regarding your authority, and when you increase it, you will start living it in reality. लास्ट में खत्म कर रहा हूं मैं। Final, and I'll close. योशुआ उनके छल को समझने में असमर्थ रहा। Joshua failed to realize the संधि deception, करने के कारण उनको निकाल नहीं सका। and because he made a treaty with them already, अगर आप he भी was not संधि able to करके drive उन्हें them रख out. लेंगे तो आप निकाल नहीं सकेंगे You know, उन्हें। when you compromise and make treaty with your problems, you cannot drive them out. परखने की आत्मा को परमेश्वर से मांगिए। Ask for the spirit of discernment. बोलो परमेश्वर, मैं एक हफ्ता नहीं खाऊंगा, मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा तो भी तेरे पास आ जाऊंगा, लेकिन मुझे दे। क्या ऐसी प्रार्थना करेंगे क्या? Say to the Lord and start praying, Lord, I will fast and pray for a week, and I will not eat anything विजय unless I जीवन receive जीने it. के लिए परमेश्वर के सिंहासन को हिलाने वाली प्रार्थना को बनाइए। You know, for you to live a victorious life, you need prayers which can shake the throne room of एक God. विजय जीवन जीजिए, लाचार का जीवन नहीं जीजिए। Don't live a helpless life, live a victorious life. शैतान जानिए, शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म है, वो सब खत्म कर So दिया है। remember that the devil does not exist. Actually, he has no power in him. उसका अस्तित्व इस दुनिया में है, You know, he is in this world, इस दुनिया का वो बादशाह है, and he is the king of the लेकिन world. आपके और मेरे ऊपर उसका कुछ नहीं चलता है। But he has no power over us. हालेलुया, Hallelujah. हम हैं करके उसका नहीं चल रहा है। हालेलुया, It is because we are on the scene, he cannot do anything. हम परिवर्तन लाने वाले लोग हैं। Because we are people who bring in a transformation. बोलो यीशु मसीह की। Jai. आज इस सुबह में हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए, आइए हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें, परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसियाओं के लिए हम लोग प्रार्थना करें, ताकि हम दिन ब दिन मसीह में बल पाके बढ़ें। You know, this morning we have gathered here to pray and intercede for our nation so that we can pray against the problems, the issues which our nation is facing, and it will be a blessing for our nation. आइए हम लोग अपने पैर पे खड़े हो Stand to जाएं। your feet. क्या आज आप लोग समस्या का सामना कर रहे हैं? Are you facing problems? क्या आप लोग बीमारी का सामना कर Are रहे you हैं? facing certain क्या कोई diseases? दबाव आपको दबाते जा रहा है क्या? Or are the pressures of life suppressing you? यदि आज है
तो आइए अपने हाथों को उठाइए If it is so, it is time for और you मैं to lift your चाहता हूँ आज hands. प्रभु की उपस्थिति के अंदर वो सब कीजिए जो आज तक आपने नहीं And किया let me tell you and urge you to do those things which you have not even done because God has delivered you right now. यस वो कीजिए हालेलुया Start doing those things. अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए Start exercising मैं your आपको बताना authority. चाहता हूँ I want to tell you यीशु के अंदर आप उसके बेटे बेटियां that in हैं Christ Jesus you are his sons and daughters. यीशु ने आपके लिए सारी लड़ाइयां जीत ली हैं Christ Jesus has conquered उसने every शैतान के battlefield. सामर्थ का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया And he है has made an open display of the powers of the devil. शैतान आपको पहचानता है The devil recognizes who कि you आप are, मसीह के हैं that you belong to Christ. आप यीशु के लहू से धोए गए हैं You are covered and washed by the blood आपको of कोई Jesus. कंडम नहीं कर सकता है No man, no devil कोई can आप condemn पे you. दोष नहीं मट सकता No है man can accuse you. कोई आपको तमाशा नहीं बना No सकता है man can make a display सब of कुछ you. उसका तमाशा मेरे यीशु ने कर दिया है Because my Jesus Christ has already क्या defamed कोई him. बीमारी नासूर करके आपके जीवन और आत्मिक जीवन में आपको बढ़ने से रोक रही है Is क्या there a sickness which hinders you from growing in the Lord? अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए Start using your authority. अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए Start using your आपकी प्रार्थनाएं authority. सामर्थ्य बन जाए आज Your prayers would be powerful. किसी समस्या को लेके आप डरे हुए हैं क्या If you are terrified of a problem, जिसने आपकी रातों की नींद को खत्म कर दिया है problems which have disturbed your जब आप sleep, उठते हैं तो तनाव में उठते हैं when you get up, you are under stress. जब आप खाना खाते हैं तो तनाव में खाते हैं When you eat food, you are under stress. आपको जीने के लिए मन नहीं लगता है And you don't have any joy in आपको living. बेचैनी लगती है You are always disturbed. तो मैं कहना चाहूंगा आप सही जगह में हैं और आज का वचन आपके लिए आया है Let me tell you that you have come to the right place and अपने today's word is अधिकार को for you. लीजिए तोड़िए उन्हें In the mighty name of Jesus, तोड़िए take this उन्हें। authority and break those तोड़िए उन problems. समस्याओं को Break those problems. तोड़िए हालेलुया Break those problems. गिरा दीजिए उससे हालेलुया Break the problems which are in your ओ life. शाबाला दीरा बाला दीरा बलगतरा नमा संबा बाला दबारा दीरा बहल्लारा नमा हेरिवा सोरी हबा खत्तारा नमा संदारा नमा हैया हो शाला राना ना खोरो नमो सेरे बेरे बे सिकेरी हम बाला खत्ता माना खोरम बाला कतरा नमा रिया बाहो शक्के रिहन देरे ने में सितरे ने में थैंक यू मास्टर थैंक यू मास्टर थैंक यू मास्टर थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया ओ नमा शक्का माना हो तो रहल्लारा नमा रिशकेरी हम बाला कतरा नमा प्रेज यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड Lord, we praise प्रेज you. यू लॉर्ड Lord, we हम praise you. धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद दे एक्सरसाइज कीजिए 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 तोड़िए तोड़िए Thank you. तोड़िए Exercise your authority सेट and फ्री break the सेट फ्री powers of the devil. पवित्र आत्मा अद्भुत काम कर रहे हैं आपके बीच में हालेलुया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड हालेलुया सारी शैतान की सत्ता को मैं उखाड़ के फेंकता हूँ उसके छल कपट को उखाड़ के फेंकता हूँ प्रभु जी हालेलुया रिबम बल हो शखरा नामा उ रिहल्लारा नामा संतरा नामा ना करालाबा रिशथेरी अंदारा नामा लॉर्ड आई डिक्लेयर मास्टर हालेलुया शबाला खलाला वाला वाला बशंद्रा नामा प्रभु हमारे आत्मिक जीवन के विरोध में हमारे सेवा के विरोध काम करने वाली इस कलीसिया के विरोध में काम करने वाली सारी शैतान की युक्ति चलाई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया ओ हालेलुया थैंक यू मास्टर धन्यवाद हो राजा सारी महिमा गौरव आदर स्तुति पिता मैं आपको देता हूँ यीशु के नाम में Amen. आमेन गॉड ब्लेस यू God bless you. गॉड ब्लेस यू आइए हम लोग प्रार्थना में